नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NIR के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria Kochambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. So Pradeep ji, brilliant performance, unbelievable performance, magnificent performance. We had been saying over here, right here on this show, that there is no way that the NDA is losing. NDA is winning and winning very well. Money in the bank means votes in the EVM. Let's be very, very clear on that. And then on top of it, they had a lot of help. मतलब जितनी मदद राजीव, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी साहब और उनके आसपास जितने भी लोग हैं, जो जितनी मतलब जो बीजेपी की करी है, मतलब मुझे नहीं लगता इवन बीजेपी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि यार हमारी 92 सीटें आ जाएंगी या 91 या 92 सीट्स आ जाएंगी। अमेजिंग। राहुल जी ने कोशिश बहुत किया। शायद बेगूसराय में जिस प्रकार से मछली पौंड में कूद के उन्होंने मछली पकड़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया कि मैं फिशिंग भी कर सकता हूं, मैं ट्रक भी चला सकता हूं, मैं अलग अलग चीज और लोगों के डायरेक्ट 1-to-1 बात करके उनकी समस्याओं को तो इट डजंट हैव एन इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट कर नहीं पाए, लेकिन वो इम्पैक्ट कर नहीं पाए। और मोदी जी बोले कट्टा वर्सेस लैपटॉप, laptop versus katta, that worked, and that worked, and people really impressed. It touched the cause of the people, touched the cause of people. Katta लालू प्रसाद यादव जी के regime को याद दिलाते जंगल राज, और हम लैपटॉप दे। I mean, it's a fantastic. और बार-बार जो छाती तान के मोदी जी बोला कट्टा versus laptop, it really worked. That is number one. Number two, 67 lakh women got 10,000 rupees. बिल्कुल. That's it. End of argument. That is a secret weapon. Ultima ratio regum, the king's last argument. And in this, any political party's last argument. Madhya Pradesh, Ladli Behna. Maharashtra, Ladki Behna. Here, Mukhyamantri Vikas Yojana. That's it. As we had been saying right over here from such a long time, how are you guys going to combat this? Yes. आप कैसे करेंगे? और जानते कि कांग्रेस का सवाल है, मेरा तो ये मानना है प्रदीप जी, अगर मान लीजिए RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल अकेले 200 सीट लड़ते तो it is the total number of seats is 243. If they had fought alone and had fought over 200 plus seats, perhaps they would have done better. The Congress pulled them down. Let's be very, very clear. That's it. Let's go straight across. I think we've got our old friend, the brilliant Mr. Sameer Bhakre of the BJP with us. Let's go straight across to him. Sameer Bhakre sahab, congratulations sir. How are you sir? Thank you sir. Thank you. Fantastic. Oh my God, what a victory! God, I mean this is unbelievable. Absolutely unbelievable. Unbelievable. मतलब के 204 सीट एनडीए के लिए सर. I don't think even Nitish ji or Modi ji would have expected this much. Very frankly speaking, we were all expecting कि 170, 160, 170 आ जाएंगी. बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. But this much, oof, this is mind-boggling. Your first reaction, sir. समीर बाकर साहब, बोलिए सर. पहले तो राजीव जी, प्रदीप जी, मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए सरकार को मतलब अनबिलीवेबल मैंडेट से वापस चुन के दिया है. एंड दिस शोज दैट द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल श्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार, और जो एनडीए के जो प्रोमिसेस है गवर्नेंस के और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उसकी जीत हुई है जी. आप देखिए, अगर आप अपोजिशन पार्टीज का एजेंडा अगर आप देखेंगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद समथिंग नेगेटिव एंड एंड्स विद नेगेटिव. उनके पास जनता को दिखाने के लिए कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है. ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां उन्होंने कुछ करके दिखाया है ऑफ मेटल, और या उनके जो भी जनता को वादे करते हैं तो जनता को पता है दिस इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड. तो मैं तो ये मानता हूं कि ये एनडीए के सुशासन की जीत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की पॉलिसीज की जीत है, ये हमारे संगठन की जीत है, और ये हमारे सहयोगी की भी जीत है. यानी मेरा ऐसा मानना है कि एक टीम में कैसा काम करना उस एनडीए से सीखना चाहिए. क्योंकि देखिए, आज आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके
कैंपेन का कोहेजन देखेंगे, एक प्लानिंग देखेंगे, देयर वाज नो कंट्रोवर्सी इन सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसा ये नहीं कर रहा है। तो आप देखिए दूसरी पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी महागठबंधन, वो एक अपनी वोट अधिकार यात्रा का कुछ एक मतलब नौटंकी करती है, उसके बाद वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाती। अगर इनको इतने सालों से पता है, 1 साल से ये अगर चुनाव में लगे तो दे आर नॉट एबल टू इवन डिस्ट्रीब्यूट। बट यू बीन वेरी लकी सर, सर यू बीन वेरी वेरी लकी। ए, यू गॉट अ ग्रेट लीडरशिप, बी, यू गॉट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन द सेंस दैट आपके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, आई हैव नेवर सीन मोर डेडिकेटेड पीपल देन इन द बीजेपी। बीजेपी आरएसएस मिलकर के जिस प्रकार काम करते हैं जबरदस्त है, और वहां पर कांग्रेस बिल्कुल फेल हो जाती है। आई मीन देयर इज नोबडी ऑन द ग्राउंड, देयर इज नो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। इनको क्या लगता है कि जैसे अभी प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे कि वो पॉन्ड के अंदर कूद करके मछली पकड़ना और कारपेंटरी की दुकान पे चले जाना या हलवाई की दुकान पे चले जाना और कुकिंग कर लेना, सर उससे कुछ नहीं होता है। आपने खुद ने मतलब अगर आप देखें 1990 के बाद 1989 दिसंबर वाज द लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके बाद आज तक कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही है बिहार में। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी ही संस्था को, अपने ही संगठन को तहस नहस कर दिया है। And all these gestures, they don't work. People want work. People want something on the ground, and which is amazing. And here, now the real task starts, sir. Now expectations are going to be very, very high. Sir, अब लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी। मानता हूँ पिछले 20 साल से सरकार है आपकी, लेकिन फिर भी अभी जो मैंडेट आपको मिला है ना सर, अब असली काम शुरू होगा आपका। समीर बागरे साहब। देखिए राजीव जी, मैं आपकी हर शब्द से पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ, और यही तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खासियत है कि हम लोग प्रो इनकम्बेंसी के बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। हम तो चाहते हैं कि पब्लिक हमसे ज्यादा उम्मीद करे और हमको ऑन द टोज रखे और हमारे परफॉर्मेंस को देखे। आप देखिए महाराष्ट्र में भी एक अभूतपूर्व जीत जब मिली थी हमको साल भर पहले, तो 232 सीट्स पूरी एनडीए को आई थी, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आप 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देवेंद्र जी का देख लीजिए। तो देवेंद्र जी ने जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके एग्जीक्यूशन पे लाए, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा, तो सर हम लोग तो चाहते हैं जितना हमारी सरकार, हमारी पार्टी की तरफ से जनता के भले के काम हो, वो तो हम चाहते हैं। और अगर बिहार की जनता हमसे एक्सपेक्टेशन करती है तो बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बागरे साहब, what clicked for you? Because आप जब कहा, when you said, when Prime Minister Modi said that 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, तो काइंड ऑफ ऑपोजिशन रिडिक्यूल कर रहे थे। आप 2 करोड़ तो दिए नहीं, अब 1 करोड़ का देंगे। जब आपने कहा 1 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे, अगेन ऑपोजिशन रिडिक्यूल। अब नौकरी नहीं दिए, पैसे वापस नहीं दिए, काला धन ने लेके आए, तो 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे और 1 करोड़ लखपति दीदी कहां से बनाएंगे? What turned? Because this to political pundits also seems to be unrealistic. 1 करोड़ नौकरी देंगे, they thought चुनावी घोषणा है, but how are you going to? अब लोग तो आपको देखेंगे और पूछेंगे आपसे, 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ लखपति दीदी। डॉक्टर बागरे साहब, देखिए प्रदीप जी, अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन पार्टी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री एनी मोर। दिस इज अ यंग कंट्री, दिस इज अ एम्बिशियस कंट्री, दिस इज अ असर्टिव कंट्री। ये कंट्री अभी ये पुराने जो मतलब मापदंड है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, जो कभी ग्राउंड पे जाते हैं ना, लोगों के बीच जाते हैं, जस्ट कास्ट इक्वेशंस करना, मुस्लिम यादव करना, ये करना। सो द कंट्री हैज चेंज। द जस्ट वन फैक्टर कोई क्लिक नहीं हुआ है। देयर आर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच आई वुड लाइक टू से दैट। पहले तो एक है कि एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप। अगर नरेंद्र मोदी साहब कुछ प्रॉमिस करते हैं तो एवरी पर्सन इन द कंट्री listens and knows that this person is going to do 100%, more than 100% efforts to complete that promise. So एक तो पहले है ईमानदारी। अगर जनता को आपकी ईमानदारी पता है कि नहीं, अगर ये जनता के लिए काम करने का वादा करते हैं और ये ईमानदार है, ये हार्डवर्क करते हैं, तो इसमें पहला तो है कि नरेंद्र मोदी साहब की ईमानदारी। नीतीश कुमार साहब का इतने साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, मैं उनको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े सीनियर नेता है, उनको काफी बार अलग अलग लोगों ने राइट ऑफ करने की कोशिश की थी, लेकिन ही इज लीडर इन हिज ओन स्टेट, टॉलेस्ट लीडर। अरे साहब एक अर्धो कलाक जरा हूं बतावी दो तीनो इंटरव्यू। कैन वी प्लीज गेट रिड ऑफ दैट साउंड प्लीज? आई थिंक मोबाइल डाटा में लागी प्लीज। कैन वी प्लीज डू दैट प्लीज? पीसीआर
जी अब आप बोलें बाकी साहब, प्लीज कंटिन्यू। देखिए राजीव जी, जो महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार जी पे है, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब पे है। दूसरा एक देखिए, एक बिहार के जो कानून का राज है, इतने सालों से वहां की जनता देख रही है कि कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे ग्रोथ हो रही है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हो रही है। मैं तो आपको अभी, जैसा आप यूपी का भी काफी एग्जांपल देखिए, मैं आपको इस टर्म का बिहार का प्रेडिक्ट करता हूं कि बिहार विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज of the country, and it will be in competition with states like Uttar Pradesh, states like Maharashtra, though on a different parameters, but there will be a healthy competition among states, and we are going to see lot of development in Bihar। और बिहार के जो एक मतलब जो एक स्ट्रक्चरल इश्यूज थे वो इतने साल से काफी हद तक सॉल्व हुए हैं। वहां से जो बाहर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे रुक गया, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चाहे बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, अगर वहां होता है तो लोगों को वहां रोजगार। सर, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क समीर बागरी साहब, बहुत चैलेंजिंग है टास्क जो है, क्योंकि बिहार एट द मोमेंट इज नंबर 14 इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी। स्टेट जीडीपी को अगर आप देखें तो बिहार नंबर 14 पर है इस वक्त हिंदुस्तान में। आई होप दैट कम्स अप बिकॉज वी एक्सपेक्ट बिहार टू बी एटलीस्ट अमंग द टॉप 5 considering the fact that its population, its talent and everything else. I hope there is some thinking on that. However, what I really would like to, that of course will be whatever paper that they come out with, that will come out later. यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई है सर, ये देखा गया है कि जो यादव वोट भी जो है ना, जो आपने क्योंकि बात करी मुस्लिम यादव की, MY लोग बोल रहे थे ना कि MY मुस्लिम यादव RJD को जाएगा, इसमें से यादव वोट भी स्प्लिट करके सर बीजेपी की तरफ गया है। और तो और छोड़िए, मुस्लिम वोट जो है इट इज 17.7%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट वोट हैज गॉन टू बीजेपी। एंड इन स्पाइट ऑफ द वेरी फैक्ट दैट वक्फ बिल रिफॉर्म्स को हम वो बिल को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, सच अ बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम तेजस्वी यादव, एंड एवरीबॉडी थॉट दैट द मुस्लिम वोट शुड गो वन साइडेड टू तेजस्वी यादव, बट इट नेवर हैपेंड। इट हैज गॉन टू बीजेपी सर, इट हैज गॉन टू नीतीश कुमार। The Muslim vote has not abandoned Nitish Kumar, and quite a large proportion of the Muslim vote has actually gone to the BJP. So in effect, जो अमित शाह जी ने बोला और किरण रिजिजू साहब ने जब बोला, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, कि वक्फ बोर्ड के सबसे ज्यादा सताए हुए लोग मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़प की है इन लोगों ने। समीर बागरी साहब देखिए राजीव जी, मैं वही बात पे आपसे पॉलिटिकल पंडित्स का जो मैंने जिक्र किया, वो एक कम्युनिटी को एक स्टीरियोटाइप्स में बांध के रखना चाहते हैं कि अगर हमारे यादव कम्युनिटी से, लालू प्रसाद यादव जी के फैमिली से कोई है तो यादव कम्युनिटी उनको ही वोट करेगी। सो आज देखिए, आज मुलायम अपने लालू प्रसाद जी यादव की फैमिली का तो भला हुआ, लेकिन लार्जर यादव कम्युनिटी का कहाँ वो भला कर पाए। मुस्लिम कम्युनिटी को 2-3% जो मुस्लिम्स है उन्होंने पूरी वक्त की प्रॉपर्टी हत्या ली है और वही एंजॉय कर रहे हैं और वही पावर में एंजॉय कर रहे थे। तो आज एक गरीब मुसलमान है जिसकी रोजी रोटी की समस्या है, जिसकी शिक्षा की समस्या है, जिसकी शौचालय की समस्या है। देखिए सर, आज मुसलमान की समस्या कोई अलग नहीं है जो पूरे हमारे समाज के हर वर्ग की समस्या है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द इलेक्टोरेट और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कि मुस्लिम यादव तो भाई हमको वोट करेंगे, अरे ऐसा नहीं होता है। ये हिंदुस्तान बदल चुका है। ये हिंदुस्तान अभी सिर्फ आपके फैमिली डायनेस्टी पे वोट नहीं करेगा, आपके परफॉर्मेंस गवर्नेंस पे वोट करेगा। और मुझे तो एक कांग्रेस पार्टी से पूछना है कि आप एक अपना मॉडल राज्य तो तैयार कीजिए जहां आप बता सकते हैं कि हमने ये गवर्नेंस मॉडल किया है। और एनडीए के पास ऐसे 20 स्टेट्स है जहां हम शोकेस कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। केंद्र सरकार की तो योजना तो हम मतलब इतनी बता सकते हैं और बाकी स्टेट्स का भी है। तो देखिए कैसा है, मैं तो ये चाहता हूं कि ये हमारे जो इलेक्ट्रोट को बहकाने की और समाज को बांटने की कोशिश है। बट बाकरे साहब, डोंट यू थिंक तेजस्वी यादव का पॉपुलर स्कीम था, हर घर में सरकारी नौकरी मैं दूंगा, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर स्कीम के एवरी घर को अगर सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहा है, इट वाज वेरी पॉपुलर स्कीम्स। सेकंड, जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वक्फ तो उन्होंने कहा है, वक्फ का रिफॉर्म बिल्स, बार टॉडी लीगलाइजिंग ऑफ टॉडी वाज वेरी पॉपुलर स्कीम, जहां दारू बंदी है। व्हाई डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट, जो गरीब लोग हैं, जो टॉडी लवर्स है, शौकीन लोग हैं, क्या ये लोग भी कन्विंस नहीं हो पाए कि टॉडी हम लीगलाइज करेंगे?
देखिए प्रदीप जी, महाराष्ट्र में जब लाड़की बहन योजना भारतीय जनता पार्टी ने 1500 रुपए का प्रॉमिस किया था, तब कांग्रेस पार्टी ने पहले तो उसको रिडिक्यूल किया और उसके बाद 2100 रुपए का प्रॉमिस किया। तो आज तेजस्वी यादव जी ने अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी ना, वेदर ही हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म, ही हैज द कैपेसिटी टू गवर्न। और ये आप जो शराब की बात कर रहे हैं, देखिए आज प्रोहिबिशन बिहार में इतने सालों से है, वहां पर प्रोहिबिशन के कारण अगर कुछ महिलाओं को नॉन वायलेंस हुआ है, मतलब जो वायलेंस होता था वो रुक गया है। तो ऐसे बहुत से समाज के क्षेत्र है जहाँ शराब से तकलीफ है। तो मतलब अगर आप कोई एक चीज की बात करेंगे तो मैं तो एक कहता हूँ कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां, उनको जनता को ये पता है कि ये ना व्यक्ति गवर्न कर सकता है, ना ये परफॉर्म कर सकता है, ना ये जो किए हुए वादे पूरे कर सकता है। तो अगर एनडीए नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई प्रॉमिस करती है तो उनको पता है कि इनका डिलीवरी का रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव का कोई डिलीवरी का रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ उनका है कि लैंड ग्रैबिंग करो, अपने परिवार की प्रॉपर्टी बनाओ। ये आप नीतीश कुमार जी के ऊपर आप कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं कर पाए, ना नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप कर सकते। तो देखिए क्रेडिबिलिटी हैज अ बिग वोट कैचिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इलेक्टोरेट्स इन दिस न्यू इंडिया। सो ये क्रेडिबिलिटी की जीत हुई है। तेजस्वी यादव अगर महिलाओं को 20,000 भी बोलते ना हमारे 10,000 के सामने तो भी लोग नहीं है, बिकॉज दे नो दैट दे कैन नॉट परफॉर्म। और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये अपने फैमिली के तरफ ही ध्यान देते हैं। बागरे साहब, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना और यहाँ पे मुख्यमंत्री विकास योजना, that has really and truly tilted the scales in your favor. Let's be very, very clear. Exactly what happened in Maharashtra. I mean, the entire thing of Maharashtra has been replicated in Bihar. मैं मानता हूँ बाकी सब चीजें भी हैं, लेकिन और दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था। जितने भी लोग वहां पर गए हैं, हर एक को यह बताता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है वहां पे, हर एक कोई बोलता बहुत अच्छा आदमी है। तो किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में लोग ऐसा बोले 20 साल के बाद भी, 20 साल 20 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कोई नीतीश जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। सो ऑल दैट वर्कड इन योर फेवर, बट एज आई सेड, नाउ वी नीड टू सी परफॉर्मेंस, नाउ वी नीड टू सी यू परफॉर्म, दैट्स इट। And I hope that happens. I really hope that happens. Because right now, Bihar is in the doldrums in terms of the economy. The Bihar economy is genuinely fragile. Sameer Bagre sahab, just a line from you, then I'll go across to Mukesh Gandhi sahab. Please go ahead, sir. मैं तो आपको पहले भी कहा कि परफॉर्मेंस we are very happy to work for the performance of our government towards our public. So हम लोग उसके लिए तैयार है। और दूसरी बात, आपने जो महिलाओं का जिक्र किया, देखिए आज महिलाओं को जो सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में मिला है, सो ये ऐसा है कि हमारे समाज में अगर 50% महिला है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई डिफरेंट, एक सिर्फ ये कैश ट्रांसफर नहीं है, बहुत सी ऐसी स्कीम है सिर्फ जो महिलाओं केंद्रित है। आपको छोटा सा एक लाइन बोल दूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा जो घर की योजना थी मोदी जी की, उसमें 76% महिलाओं के नाम पे घर है, जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना। सो हाउ इम्पोर्टेंट फीमेल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परिवार का भी एक सपोर्ट सिस्टम एक महिला ही है, एक माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो। तो इसके लिए महिलाओं का सम्मान एनडीए सरकार हमेशा करेगी। और मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आप बिहार का इकोनॉमिक रिवाइवल जो आप देखेंगे, it will be astonishing. But as I said yesterday in our show yesterday, we were discussing Bihar. We had Ali Darwala Saab from the BJP with us, and as I congratulated him because the Nalanda University campus is now complete, and it is one of the most beautiful educational campuses in the world. It is architecturally so beautiful, so beautiful. मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा अप्लाई कर दूं यूनिवर्सिटी में, दोबारा पढ़ने के लिए। And it is Prime Minister Modi now, but about 1.5 years से लगातार चालू है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जो स्पिरिचुअल मूवमेंट चालू कर दिया था, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर सबको बुलाना और एक इवेंट करना, I think it's really taking place in a big way. Really and truly wonderful, especially Nalanda. Now, let me go across to Pooja Mishra ji is also with us now. Dr. Pooja Mishra, welcome again. Thank you so much for joining us, man. Mukesh Gandhi sahab. So, congratulations Mukesh Gandhi sahab. आप तो बड़े खुश होंगे आज। आज बहुत खुश हूँ जी। और
मैंने एक ही बात देखी है कि बीजेपी एनडीए की जीत के पीछे एक तो मैं तो पासवान जी को भी खास करके अभिनंदन देना चाहता हूं कि उनका भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, और मोदी के साथ जुड़ने के बाद में नेता में नेतृत्व कितना बढ़ता है वो पासवान एक हमारे सामने आदर्श खड़ा हुआ है कि उसने भी अपने पिताजी से भी आगे जाकर के ये टाइम में विक्ट्री बीजेपी के साथ में रह करके पाई है। उनके लिए उनको धन्यवाद। और ये जीत के पीछे मुझे ये लगता है कि इसमें एनडीए के जो भी एजेंडा था, वो एनडीए के एजेंडा में पहला तो स्त्री सम्मान की बड़ी योजना थी। पैसा देना ये अलग बात होती है, पैसा देने से कोई स्त्रियां वोट देती नहीं है, पर स्त्री सम्मान हुआ, युवा सम्मान हुआ और आम जनता का आत्मसम्मान हुआ। ये तीनों चीज इकट्ठे होने के कारण में आज पूरे आयोजन के कारण और पूरी व्यवस्था के कारण एनडीए ने अनटू द लास्ट जाकर के जो कैंपेन किया उसकी असर ये उनकी विक्ट्री में उनको मिली है। दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ने 13-14 दिन बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा माहौल बनाया, पर बाद में वो परदेश चले गए और उनके पीछे कोई ऐसे कार्यकर्ता रहे नहीं कि जो कांग्रेस का काम करे, उसको मतों में रूपांतरित करने का कोई आयोजन करे। इसके लिए कांग्रेस की बुरी हालत हुई। ये देख के भी मुझे दुख होता है क्योंकि ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए जी, पर नहीं हुआ। और तेजस्वी प्रताप और इनके जो फैमिली के झगड़े हैं अंदर अंदर के, और उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी, और ये हमारा हीरो पहले अपने पार्टी का सिंबल लेके घूमता था, पर बाद में उसने क्या किया हमारे यादव साहब ने कि रोज नए नए टी शर्ट अलग अलग कलर के पहन के गया कि मैं लोगों को इंप्रेस करूंगा, पर टी शर्ट बदलने से लोगों में जागृति नहीं आती है। वो अभी उनको रियलाइज हो गया होगा और अभी वापिस अपने पायजामा कुर्ता के ऊपर आ जाएगा। गांधी साहब, महाराष्ट्र से रिएक्शंस आना शुरू हो गया। विजय विदेटीवार कांग्रेस का कहने लगा एसआईआर का माध्यम से 70-80 लाख वोट जो कटे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, वोट चोरी का आरोप लग रहा है। संजय राउत कह रहा है कि महाराष्ट्र मॉडल हैज बीन रेप्लिकेटेड, महाराष्ट्र मॉडल रेप्लिकेट हो गया है और इसीलिए हार गया है। वही इसी वोट चोरी, सरकार चोरी कैसे देखते हो गांधी साहब? सर देखिए, ऐसा है, विजय वट्टीवार का इंटरव्यू मैंने देखा, संजय राउत का ट्वीट भी मैंने देखा। ये हारे हुए बौखलाए हुए लोग हैं कि जो उनको लगता है बीजेपी का, मोदी जी का नेतृत्व, उनकी शक्ति, आरएसएस का उनके पीछे का फॉलोअप और अमित शाह जी का जो संगठन की जो शक्ति है वो उनके पार्टी में 1% भी नहीं है। न तो शिवसेना उद्धव ठाकरे में है, न तो कांग्रेस में है। अभी खाली अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, पकड़ के रखने के लिए अभी ये सब बातें कार्यकर्ता बचे क्या? वही तो है ना, वही कार्यकर्ता बचे क्या कांग्रेस के? बिहार में कहां? कच्चे हैं, बच्चे कुच्चे हैं, उनको करते हैं, आंदोलन कराते हैं, भाड़ूती लोगों को बुला के काम करते हैं, सब पब्लिक को मालूम है, पर उनके इम्पैक्ट कोई नहीं है। ये जीत एक लोकशाही में हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व की है और मुझे लगता है कि मोदी साहब ने कहा एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पार्टी। तो क्या राहुल गांधी जी पे ये टैग सही लगा? बिकॉज आज भी मिसिंग थे, इलेक्शन के दौरान भी मिसिंग थे। इज ही टेकिंग हिज जॉब सीरियसली? तो एलओपी को लीडर ऑफ पार्टी जो बीजेपी ने टैग दिया, कितना सही लग रहा है आपको? सर देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी 21 साल से अपने बेटे को तपस्या करा रही है कि बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, पर ये बेटा आगे बढ़ता नहीं, आगे बढ़ने से ज्यादा पीछे मुड़ जाता है। 5 स्टेप ऊपर चढ़ता है तो 20 स्टेप नीचे उतर जाता है, जंप मार देता है। उसमें कांग्रेस पार्टी का भी बड़े बड़े लोग सब पार्टी से निकल गए, कांग्रेस की हालत खराब हो गई है और ये दुख की बात है। ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, वो मैं हमेशा कहता हूं, पर अभी ये नहीं है। तो ये सर लेट मी गो टू डॉक्टर पूजा मिश्रा, 1 सेकंड सर। हाँ डॉक्टर राजीव जी, राजीव जी 1 मिनट सर, मैं यहाँ हिंदू जिमखाना में एक मेरे पार्टी में आया हूँ। ये देखो, तो सर मेरे को आपके साथ में एक विचार करना था, इसलिए मैं बीच में आया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी सॉरी, यू आर द पार्टी मैन।
Yes. You are the neighbor of मुकेश गांधी. शायद आप दोनों लोगों को मालूम नहीं है. समीर बागरे जी और डॉक्टर पूजा मिश्रा जी को शायद मालूम नहीं होगा कि ये भी ऑल्टमाउंट रोड पे रहते हैं और उनके साथ वाला मकान जो है वो मुकेश अंबानी का मकान है. उसके साथ में इनका बंगला है. मुकेश अंबानी मेरे भाई है. He is actually a multi-billionaire. Thank you so much for joining us, sir. वैसे अजीत पवार की पार्टी में ऐसे लोग हैं. I am a middle class man. Don't. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अल्टमाउंट रोड पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं. हाँ बिल्कुल सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. नमस्कार. जय हिंद. सॉरी नॉट एट ऑल सर. नॉट एट ऑल. डॉक्टर पूजा मिश्रा, वी सॉ व्हाट हैपेंड टू तेजस्वी यादव. राहुल गांधी जी के साथ अब ये कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ जो भी अलायंस करेगा उसका तेजस्वी वाला ही हाल होने वाला है. अब आप बताइए, दिस इज अ क्लियर कट डेंजर साइन फॉर यू. ये तो डेंजर सिग्नल है, खतरे की घंटी आपके लिए. तो उत्तर प्रदेश में you will have to work on two things. One, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस जारी रखनी चाहिए? नहीं. और नंबर 2, अब बीजेपी को तो ये टेम्पलेट मिल गई है. मैं तो 2 महीने से कह रहा हूं. मनी इन द बैंक मीन्स वोट्स इन द ईवीएम. 10,000 rupees to 67 lakh women each. How do you expect to fight that? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होंगे उसके 1 महीने पहले ऐसी ही कोई स्कीम जैसे मध्य प्रदेश में अनाउंस की गई लाडली बहन, महाराष्ट्र में अनाउंस की गई लाडकी बहना, मुख्यमंत्री विकास योजना बिहार में, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होगा. उससे समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी मैम? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी. राजीव जी, आपको नमस्कार. साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार. भाजपा को जो है प्रचंड बहुमत मिल गई हुई है बिहार में और जेडीयू को भी. और अभी हमें वो परिणाम पता ही है कि आरजेडी को कितनी सीटें मिली हुई हैं, कांग्रेस को कितनी मिली हुई है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली हुई हैं. ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक फैक्टर ये काम कर रहा है. हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड ही क्यों ना, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं. और अब बिहार को देख लिया जाए, महाराष्ट्र को देखा ही हमने, तो ये देखने को मिल रहा है कि आपने जो कहा ना, मनी इन द बैंक, वोट इन द ईवीएम, ये सही देखने को मिल रहा है. और अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे जी. तो मैं जब 9th में थी तो मेरे एक टीचर थे, उपाध्याय सर, रुद्र उपाध्याय. मुझे सोशल साइंस बिल्कुल नहीं आता था, ये थ्रेट था मेरे लिए. तो मैंने उनसे क्लासेस ली थी कि एक्स्ट्रा क्लासेस सर हमको दे दीजिए. तो उन्होंने पढ़ाया था. उन्होंने एक पॉलिटिक्स पढ़ाते हुए ये कहा था कि जो लीडर होता है कहीं का, कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद है, एमएलए है, वो मिरर इमेज होता है जनता का. तो अगर आप जो है पैसे लेकर के वोट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि जिस लीडर को आपने वोट किया हुआ है वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पे कर चुका हुआ है. तो अगर मैं हमेशा इस बात को एग्री करती हूँ, अगर आपको कहीं पे लीडरशिप ऐसा मिल रहा है कि सांसद आपको लग रहा है बहुत करप्टेड है, इसका मतलब जनता वहां की करप्टेड रही है, उसने पैसे लेकर के वोट किया है, या पैसे लेकर के किया है, या लीकर पे वोट किया हुआ है, या किसी और चीज पे वोट किया हुआ है. लेकिन साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि बिहार का चुनाव जब राजीव जी हो रहा था तो देश के गृह मंत्री वहां पे 8 दिन रुके हैं जी. अब देश के गृह मंत्री किसी राज्य में 8 दिन रुके, ये हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भी. जब उत्तर प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री जी 3 दिन तक रुके रहे बनारस में, तो हमने देखा था कि उसके आसपास पे किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ था. तो अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम टॉकिंग अबाउट द मनी और लिक्विड मैनेजमेंट, तो जब लिक्विड मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं तो लिक्विड मैनेजमेंट में सबसे आगे भाजपा ही है. वो तो इलेक्टोरल बोर्ड भी क्लियर हुआ था. और अगर लिक्विड मैनेजमेंट पे फ्लो जा रहा है, और मैं ये नहीं कहूँ लिक्विड मैनेजमेंट पे ये जनता जा रही है, लिक्विड मैनेजमेंट पर मशीनरीज जा रही है. और अगर ये बिहार के चुनाव का परिणाम को आप देखेंगे तो इसके मुझे लगता है कि भाजपा को, जेडीयू को, एनडीओ को, ज्ञानेश कुमार को मानना चाहिए कि उनके लिए हीरो हैं कि हाँ, इन्होंने जो है उनको वहां पे स्थापित कर दिया और इतने प्रचंड मोहम्मद के साथ में स्थापित कर दिया हुआ है. हाँ, बाकी वो देश के लिए तो विलन रहेंगे कि जहां पे आपको पारदर्शी तरीके से बिल्कुल डिस्टर्बेंस के बिना चुनाव होने चाहिए. डॉक्टर पूजा मिश्रा की एक्चुअल में क्या चाहती है पूजा मिश्रा जी, आर यू एक्यूजिंग द इलेक्टोरेट कि पैसा लेकर आप वोट दे रहे हो तो ऐसे ही सरकार आपको मिलेगा, करप्ट सरकार मिलेगा? एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पैसा लेकर वोट देना एक क्राइम है, ऑफिशियली इट्स एन इलीगल एक्ट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, एंड यू आर गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ गवर्नेंस.
दैट गवर्नेंस जो आपका नहीं सुनेगा, आपको पैसा दे दिया, आपसे वोट लिया, अभी आपके बात नहीं मानेंगे। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है। वरना जो है बिहार तरक्की नहीं कर लिया होता। लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, लेकिन नहीं की बिहार ने तरक्की। अभी जो है जितनी बार भी हम लोग डिबेट में बैठते हैं, राजीव जी बात करते हैं जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की, आई होप टू विजिट नालंदा यूनिवर्सिटी इन दिस कमिंग मंथ, क्योंकि इतनी बार बात कर ली हुई है। तो अब मुझे लगता है कि आप सोचिए कि आपके डिबेट में आप तारीफ करने के लिए भी जाते हैं तो आपको सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी मिल रही होती है, जिसकी फंडिंग भी आउटसाइड से हो रखी हुई है, जिसका इनिशिएशन किसी और सरकार में हो रखा है। आपके पास में ये नहीं है कि क्या किया इन्होंने क्या किया। वो इन्होंने जब कुछ किया नहीं है तो इनके पास में वोट पहुंचा कैसे है? वोट पहुंचा मैनेजमेंट से है, मशीनरीज के मैनेजमेंट से पहुंचा हुआ है। द लिक्विड फ्लो टू द मशीनरीज एंड मशीनरीज डिड देयर जॉब, बस जो उनको कहा गया करने के लिए। What will you do? That is my question. ज्ञानेश कुमार हीरो है एनडीए के लिए, माला पहना करके उन्हीं को स्वागत करे, मुख्यमंत्री बना दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई जो जीता है उसको बनाना चाहिए ना, तो जीते वो ज्ञानेश कुमार है, बना दे मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दे, फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे, फिर भी हम आपत्ति रहेगी जो जाहिर करेंगे। लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा, हम सामने कह रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन इसके सामने कैसे लड़ेंगे आप? हाउ विल यू फाइट? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। यू विल हैव टू हैव अ टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी, अ रेडिकल स्ट्रेटजी, समथिंग दैट इज। आप चाहते हैं कि हम यहाँ डिबेट में बैठ करके उस टोटली जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी को शेयर करें, डिस्कस करें? कर दीजिए तो बहुत अच्छा। जहाँ जिस मीटिंग में हमें फोन अलाउड नहीं होता है, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठ करके उस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करें, बात करते हैं। अब तक हमने जो है जब बिहार के परिणाम आने चालू हुए तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी चालू है, क्या डिस्कशन चालू है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। हाँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ कि जब अगर कोई भी पार्टी हो, अगर समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन है, बार बार देख रही है कि गवर्नमेंट का ये चाल है और ये चाल चल रही है, जहां जहां पे उसकी सरकारें हैं उसका ये जो लूप होल है कि आप सरकार में है तो आप योजनाएं ला सकते हैं, इवन योजनाएं ऐसी कि जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करती हो तो ये कर सकते हैं, और जो इन्होंने बिहार में किया उससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर ये जानते हुए भी और हम उसका काउंटर प्रिपरेशन ना करें तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम काउंटर प्रिपरेशन जो करेंगे। 2024 का परिणाम ऐसे ही नहीं आया था और उसकी स्ट्रेटेजी भी जो है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता कोई प्रवक्ता बैठ करके किसी ने डिस्कस किया होगा, और 2027 की भी स्ट्रेटेजी जो है हम बैठ करके डिस्कस तो नहीं करेंगे टीवी डिबेट पे। हाँ, है कि हम काउंटर्स के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, तैयारी के साथ में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, बट द फैक्ट इज मुस्लिम वोट्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम इंडिया अलायंस। तेजस्वी यादव जी ने एक जबरदस्त ऐलान किया था कि वक्फ बिल रिफॉर्म्स को मैं कचरे के डब्बे में डाल दूंगा आफ्टर आई कम बैक, but the Muslims, it seems by the election result, has not voted for Tejasvi Yadav, have not voted for Rahul Gandhi, India Alliance को वोट नहीं किया। क्या appeasement is not working? बीजेपी का कहना ये appeasement politics है। Is appeasement not working? अगर appeasement नहीं वर्क कर रहा है तो किसी के लिए वर्क नहीं करेगा। ऐसा थोड़े होता है कि नहीं आपका appeasement वर्क कर जा रहा है, हमारा appeasement वर्क नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, किसी के लिए वर्क नहीं करेगा। मैं एग्री करती हूँ भाजपा से कि अपीजमेंट वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रही मशीनरी इकलौती जो है। ना तो भाजपा का अपीजमेंट जो है वर्क किया है, ना ही विपक्ष का किया है, मशीनरीज ने वर्क किया हुआ है। मैं फिर कहूंगी ज्ञानेश कुमार जी को जो है घोषित किया जाए बिहार के मुख्यमंत्री बने, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो तो आप अनफेयर बात कर रही हैं, सीधी सादी बात है, हमने देखा है। मैं अनफेयर बात नहीं कर रही, फैक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। मैं आपको व्यक्तिगत अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, आरएसएस का जो काडर है, उन्होंने काम करना कभी भी बंद नहीं किया। पिछले 2 साल से ये लोग इस चुनाव की प्रिपरेशन में लगे थे, सब लोग काम कर रहे थे पूरे बिहार में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में क्लस्टर, उन्होंने देयर मेड क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस, जहाँ जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहाँ पर जाकर के, स्वयंसेवक वहाँ पर जाकर के लोगों के साथ टच में थे। ऐसा हमने कुछ नहीं देखा आरजेडी से। और कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं बजा वहां। तो आज कांग्रेस की 6 सीटें, दे आर लीडिंग इन 6 प्लेसेस और AIMIM इज लीडिंग इन 5 प्लेसेस। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका संगठन अच्छा है,
तो वो टक्कर दे सकता है। या संगठनात्मक बात हो रही है, संगठनात्मक तरीके से भी ये दोनों पार्टियां जो हैं आरजेडी और कांग्रेस बहुत कमजोर थीं, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए काफी यादव वोट भी जो है ड्रिफ्ट करके बीजेपी की तरफ गया है और काफी मुस्लिम वोट विच वाज 17.7%, उसमें से भी बहुत जो है नीतीश कुमार जी की तरफ गया है और कुछ बीजेपी की तरफ भी गया है। ये हुआ है। Let me go to Sameer. I just want to ask her one more thing. Dr. Pooja Mishra ji, I want to ask you one thing. महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा हम लोग एग्जाम्पल और देखा कि किस प्रकार मोदी जी ने इंप्रेस कर दिया। पहले 7,500 करोड़ दे दिए और उसके बाद ऐलान कर दिया 1 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे। मोदी साहब ने जब ये कहा, उसके एवज में हमने तेजस्वी यादव जी को क्या सुना, हम टॉडी को लीगलाइज करेंगे। तो क्या महिला जो इलेक्टोरेट है वो शॉक हो गए कि जहां नशाबंदी है, जहां हमको तकलीफ हो रहा है, जहां टोटल अल्कोहल बैन है, वहां आप पहले दरवाजा खोल के टॉडी को अब लीगलाइज, क्या एक बुरा इफेक्ट लगा? बिकॉज यू अंडरस्टैंड महिला पॉलिटिक्स बेटर। नो प्रदीप जी, इट्स नॉट लाइक दैट दे कम टू दिस कंक्लूजन, दे नो दैट कि भले जो है लीकर बैन है जो है बिहार में, पर हर नुक्कड़ हर चौराहे पे आपको लीकर बड़ी आसानी से मिल जाता है बिहार में। मतलब बैन है, ड्राई स्टेट है कहने को, पर लीकर अवेलेबल है पूरी तरीके से। और अगर इससे चुनाव की हार जीत होती तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में एक शहर उत्तरी विधानसभा 262 इलाहाबाद में, वहाँ के विधायक है भाजपा से, उन्होंने कहा था कि मॉडल शॉप जो वाइन शॉप्स होते हैं उनको लीगलाइज करके उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और वो बढ़ाई भी गई। तब उनसे कोई फर्क नहीं आया। आप भाजपा चुनाव लड़ती है, भाजपा की सेकंड बार सरकार बन जाती है, तो अगर ये चीजें इम्पैक्ट डाल रही होती तो डालती, ये इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। जो ग्राउंड पे आप कह रहे हैं महिलाएं नाराज हो गई, नहीं, महिलाएं नाराज नहीं हो गई। अगर आप महिलाओं के बीच में जाते हैं तो आप उनको जो अगर 10,000 की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तो मशीनरीज का है। अगर मुझे आप ये कहते हैं कि उनकी वुमेन विंग महिलाओं के साथ अंदर तक गई और उन्हें समझाने की कोशिश की हो कि हाँ ये आपको 10,000 मिले हैं, आपको 10,000 और मिलते जाएंगे, तो आप जो है अब हैंडल कर पाएंगे अपने सिचुएशन को, क्योंकि बहुत मिजरेबल सिचुएशन है फीमेल्स की। अगर आप बिहार की बात करें तो वहां तो और एक जहाँ पे जो है अगर लिटरेसी रेट देख लिया जाए वुमेन्स का बहुत डाउन है, तो वहां पे अगर ये किया होगा तो इस पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एग्रीमेंट मेरी हो सकती है। बट आप ये कहे कि नहीं ताड़ी लीगलाइज हो जाएगी उसकी वजह से वो नाराजगी आ गई, तो नहीं। जो है उनको पता है कि किस तरीके से बिहार में कालाबाजारी के साथ में लेकर चल रहा है। Let me go to Sameer Bhagre साहब. Sameer Bhagre साहब, you don't seem to be well, but thank you so much for joining us anyway. लग रहा है आपको बहुत बुरी तरह आपको सर्दी वगैरह हो गई है. Suddenly the temperature is dipped in Maharashtra. महाराष्ट्र में मतलब ये पहले क्या था कि बारिश बंद नहीं हो रही थी, अभी एकदम ठंडी का दौर आ गया है. तो समीर बागरे साहब आप ये बताएं कि 20 साल से मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, एक डेढ़ या 2 साल तक वो इनके साथ थे, तेजस्वी यादव साहब के साथ, 17 या 18 साल के तक वो आपके साथ हैं सर। 17-18 साल में you have not been able to bring the state of Bihar up to a certain level. मैं मानता हूं जो माइंस वगैरह हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो थे वो सब झारखंड में चले गए। इस वक्त बिहार के पास तो कुछ नहीं है, बिहार के पास तो सिर्फ एग्रीकल्चर है। एंड बिहार ऑल्सो हैड यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर राइट नाउ। माई पॉइंट इज सर, वेरी क्लियरली इट अपीयर्स द पीपल डोंट रियली सीम टू केयर अबाउट दैट कि आज की तारीख में बिहार जो है 14वें नंबर पर है स्टेट जीडीपी में। देयर इज अ जॉब क्राइसिस इन बिहार। आई एग्री विद यू कि इतना ज्यादा पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है, फिर भी लोग आ रहे हैं। मुंबई में तो आ ही रहे हैं सर, मुंबई में तो एवरी थर्ड ऑटो वाला इज फ्रॉम बिहार, हर कोई काम करने वाला बिहार से होता है, हर कोई उधर से होता है। पूछा जाएगा भाई क्या है बिहार में, नौकरी वोकरी नहीं है क्या, वहां पर क्यों नहीं काम करते, कहता साहब नौकरी नहीं है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे सर? यू आर देयर नाउ फॉर अनदर 5 years, मतलब 23 years आपकी सरकार हो जाएगी। समीर बागरे साहब देखिए राजीव जी, मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली बिहार जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब इतने स्ट्रक्चरल इश्यूज वहाँ क्रिएटेड थे, क्रिमिनल गैंग्स थी, जंगल राज था, तो काफ़ी चीज़ें ये 15 साल में नीतीश कुमार जी के सरकार ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। अब देखिए एक इकोनॉमिस्ट मतलब होते हुए आप भी जानते हैं कि अगर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तो इन्वेस्टमेंट्स आती है। फिर हम जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है उसके बाद कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी,
चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। और आप देखिए अभी बिहार में भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति जो है, चाहे टाटा समूह हो, चाहे अंबानी समूह हो, इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं तो मतलब जानता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स येट टू बी डन इन बिहार, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय सच अ ह्यूज मैंडेट विल डेफिनेटली ब्रिंग चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। और मैं आपको एक राजू जी एक बेसिक बात बताता हूँ, जैसा एक बार ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी शुरू होता है ना, जैसा अभी बिहार में काफी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, महिलाओं को अधिकार दिए गए, नगर लोकल जो हमारी संस्था है उनको उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन देके महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, बिहार की महिलाएं भी आगे तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसा है कि आप इसका एक टोर्नेडो इफेक्ट जल्दी देखेंगे कि बिहार की इकोनॉमी विल स्काईरॉकेट वेरी फास्ट। आई होप सो सर, दैट विल बी वंडरफुल, दैट विल बी वंडरफुल टू वॉच, बिकॉज़ नाउ द स्ट्रक्चरल थिंग्स आर इन प्लेस, law and order is in place, there is a stable government, people are clear that NDA is here to for 5 years, so industries and all will definitely invest। और मैं मेरी सम्मानीय प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी को सुन रहा था, तो मैं तो इनको एक अनचाही एडवाइस देना चाहूंगा कि पहले तो आप ही अपनी निगेटिविटी, चुनाव आयोग को ये करना, ब्लेम करना, वोट चोरी करना, ये सब बंद कीजिए। पहले तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे अपोजिशन पार्टी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है। उनको लग रहा है कि भाई ये चुनाव आयोग जीत रहा है, चुनाव वोट चोरी जनता के मन में हो रही है। कोई आप अगर एखादा ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल करते, उसमें भी क्या जनता के मन की चोरी होती है क्या? सो एवरी नहीं करेंगे बाकरे साहब, नहीं करेंगे। कल ही राहुल गांधी जी ने आरोप आप पर लगा दिया, लाइव मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आप लाइव मर्डर ऑफ लोकतंत्र का हत्या कर रहे हो, यू आर किलिंग डेमोक्रेसी, यू आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी। वोट चोरी, एसआईआर, कल राहुल गांधी ने कहा एसआईआर के माध्यम से आप कांग्रेस के वोट्स को हटा रहे हो। अखिलेश यादव जी ने यही आरोप आप पे लगा दिया है, एसआईआर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोट्स आप गायब कर रहे हो। नाउ दिस इज अ सीरियस चार्ज कमिंग फ्रॉम सीनियर ऑपोजिशन लीडर्स। बाकरे साहब बोलेंगे और बोलेंगे जब तक ये रुकेंगे नहीं। ऐसे ही राहुल गांधी जी का कहना, अखिलेश यादव जी का कहना है। बाकरे साहब देखिए प्रदीप जी, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे आप राहुल गांधी हो, चाहे आप अखिलेश यादव जी हो, अगर आपके पास तथ्य है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखिए आप हमेशा आरोप करेंगे, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आरोप करके भाग जाएंगे, कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आपको पता है कि आपके पास जो तथ्य है वो कोर्ट में 2 मिनट में कोर्ट उसका संज्ञान नहीं देने वाला है, क्योंकि आप सब स्टोरीज बना रहे हैं। मुझे बताइए, हरियाणा के वोट चोरी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिहार चुनाव के एक दिन पहले करते हैं? यानी आप क्या जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या कि आप कुछ भी आरोप करेंगे और वो एक जैसी परिवारवादी पार्टी में होता है कि भैया मुखिया ने बोल दिया, तो जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है ताली बजाओ ताली बजाओ, वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में है कि भैया परिवार के मुखिया ने बोल दिया तो वोट चोरी हो गई। भैया आज यहाँ देश में अदालतें हैं, देश में पूरा ओपन मीडिया है, देश में इतना सोशल मीडिया है, तो आप अपने प्रूफ तो बताइए। कुछ सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखा के वही सब वोट कांग्रेस पार्टी को गए, तो ना इनकी पढ़ाई है, ना इनका संगठन है, ना इनके पास सहयोगी बचे हैं, ना इसका कोई परफॉर्मेंस है, ना इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है, ना इनके पास कोई आइडियोलॉजी बची है। तो मैं तो कहता हूं कि अब मुसलमान समाज को भी एक समझ आ चुका है कि हमारा सिर्फ वोट बैंक करके इस्तेमाल हुआ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अपोजिशन पार्टी हो। उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों का इन्होंने इस्तेमाल किया समाज को डिवाइड करने में। एक ऐसे काम बता दीजिए कि जो जिसके कारण मुसलमान युवती की तरक्की हुई है, रोजगार बढ़ा है। मोदी जी के इसमें तो हर योजना में सभी को फायदा मिला है। और एक रिपोर्ट आप सर्वे करा लीजिए कि मुसलमानों की जो माली हालत है वो बीजेपी सरकार में ज्यादा अच्छी हुई है, बिकॉज दे आर बेनिफिटेड थ्रू लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो आज देखिए इनके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह हिल चुकी है और फिर भी इनको यकीन नहीं है। So let me ask Dr. Pooja Mishra. Dr. Pooja Mishra, ये मैं कितनी बार कांग्रेस से पूछ चुका हूं, समाजवादी पार्टी के जो अन्य आपके यहाँ पे काफी लोग आते हैं उनसे भी मैं बार बार पूछूंगा कि आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? बीजेपी का मॉडल क्या है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बिग इंडस्ट्री, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
ये वगैरह 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 वगैरह, एंड देयर विल बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड। और उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब लोगों के बैंक के खाते खोल दिए गए, आधार लिंक टू बैंक, and everybody benefits. What is the alternative model of that the समाजवादी पार्टी has, मैम? बताएंगे जरा उसके बारे में। राजीव जी, समाजवादी पार्टी का मुझे लगता है कि जब 2017 का आपने चुनाव देखा होगा तो इतिहास में ऐसी एक पार्टी रही होगी जिसने इस नाम पे वोट मांगा था कि जो है आपका वोट समाजवादी पार्टी के काम के नाम पे, काम किया है काम करेंगे, इस पे वोट मांगा था। और हमने जब वोट मांगा था तो अपनी काम को बताते हुए मांगा था, रिपोर्ट कार्ड के साथ में मांगा हुआ था। और आपको पता ही होगा कि जब जो हाईटेक किया गया हुआ था, आपने शायद आपके चैनल ने इस चीज को कवर किया था कि नहीं किया था, जब डायल 100 जो अभी डायल 112 हो रखा है, उसका जब पूरे उत्तर प्रदेश में मार्च किया गया हुआ था, उसको हाईटेक करते हुए बाइक के साथ में, जो लोगों ने टीवी में ही देखा हुआ था, मूवीज वगैरह में देखा हुआ था, उसको हाईटेक किया गया। 1090 बनाया गया वुमेन हेल्पलाइन के लिए। हमने यहाँ पे मेट्रो की योजना की शुरुआत करते योजना चलाई थी। जो लंबित योजनाएं पड़ी हुई थी बीएसपी के कार्यकाल में, यहाँ से इलाहाबाद से लेते हुए पूरे बनारस तक हाईवे जो घंटों जाम रहा करता था, उसको हमने जो है कार्य किया। जब इनकी सरकार आई तो उनको फीता काटना था और हमने कार्य करते रहे। हमने जो मॉडल स्कूल बनाए थे उनको बनाते रहे, हम कार्य करते रहे। हमारा जो कार्य था, हम ये कर रहे थे कि हम कार्य कर रहे थे। हमसे क्या गलती हुई थी उस वक्त जो है राजीव जी, हमने प्रचार नहीं किया था। जैसे कि इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे 660 करोड़ एलोकेट किया, उसमें से 430 करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रचार में खर्चा कर दिया। समाजवादी पार्टी से यहाँ चूक हो गई थी, हम उसका प्रचार नहीं कर पाए थे जितना हमने काम किया था। मेरा जूनियर है, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया, उसकी दीदी को दिया गया था 2016 में लैपटॉप, वो अभी यूज करता है और उसको अब जाकर के उसने मॉडिफाई करवा दिया, वो काम कर रहा है। और इस सरकार की जो फोन चली, जो टैबलेट चली, वो नहीं पहुंची हुई है। तो हम तो जो तरक्की की बातें की जाती है, हम तरक्की को लेकर के आगे का मॉडल क्या है कह रहे हैं। हमारा मॉडल यही है कि उत्तर प्रदेश डेवलप्ड होना चाहिए। अगर हमारा मॉडल देखना हो तो आप देख लीजिए साफाई को जा करके। सब कहते हैं गांव था, एक गांव था, लेकिन हमने हर चीज ला करके दी, वहां पे लायन सफारी तक ला करके की हुई है। तो हम पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को उस विजन के साथ में देखते हैं। गोमती रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी सरकार ने कार्य किया हुआ था। सबसे बड़ा जो है पार्क हमने लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिल्क पार्क बनाया। हमारा जीटीएमआईसी का प्रोजेक्ट चल रहा था। अगर इन सारे प्रोजेक्ट को आगे किया गया तो हमने पुलिस भर्ती में जब आप कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, जिसमें आपको एजुकेशन चाहिए 10th 12th की, तो मेरिट बेसिस कर दिया कि वहां पे आपकी बॉडी की फिटनेस चाहिए। आप अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और आपने जो है मेरिट आपकी करती है कि आपने इतना परसेंटेज लेकर के आए हैं, तो आप कांस्टेबल, जिस स्किल की बात ये आज कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस पहले बात करती कि जिस काम के लिए स्किल की जरूरत है तो उसके स्किल का एग्जाम होना चाहिए ना। तो जिसको जितने स्किल की जरूरत है, जो जॉब डिमांड करता है, उस स्किल के हिसाब से उसको जॉब दे दिया जाए। उसको अननेसेसरली, अब अगर हमको पानी में मछली को उतारने से तैरना ही पूछना पड़ेगा ना, हम उसको चढ़ा के तो नहीं पूछेंगे भाई पेड़ पे चढ़ करके दिखाओ, तो उसको पेड़ पे चढ़ने ही चढ़ने देना। अगर वो पहले की बनी उसको बंद करके हम सीधा तैरना सीखेंगे उसका। तो ये समाजवादी पार्टी की पहले से एक स्ट्रेटेजी रही है और हम उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए काम करेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये एलिगेशन जो बार बार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, नंबर 1 एग्जिट पोल्स, आप जानबूझ के बीजेपी इज डूइंग इट टू डीमोरलाइज द ऑपोजिशन, डीमोरलाइज ऑपोजिशन करने के लिए एग्जिट पोल्स करते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट्स आर फार बेटर देन व्हाट द एग्जिट पोल्स सजेस्ट। और बार बार यह कहना कि एसआईआर के माध्यम से समाजवादी पार्टी वोटर्स को दूर किया जा रहा है। नाउ हाउ कैन यू एलिमिनेट समाजवादी पार्टी वोटर्स फ्रॉम द एसआईआर प्रोसेस? ये अखिलेश जी जब एलिगेशन करते हैं, वी फेल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू डू, कैन यू एक्सप्लेन इट टू अस? कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको बूथों की संख्या बता दूं, मैं बूथों का नाम बता दूं जहां पे जो है भाजपा को 2024 में 1000 वोटों में 12 वोटों के लाले पड़ गए हैं। अच्छे नेता लड़े हुए। मैं आपको ऐसे बूथ संख्याओं के नाम बता दी तो क्या एसआईआर करते हो आपको नहीं पता होगा कि कौन से बूथ संख्या में, जैसे मुझे पता है कि कौन से बूथ संख्या में हमारी पार्टी को 4 वोट पड़े थे कि 10 वोट पड़े थे कि 15 वोट पड़े थे। हमारी अपनी जो हमारी विधानसभा, जिस विधानसभा में आते मुझे उसके सारे के सारे बूथों के नंबरिंग पता है। तो क्या ये भाजपा के पास में इंफॉर्मेशन नहीं होगी? उनको पता नहीं चलेगा कि इस बूथ से अगर इतने लोग जो है समाजवादी पार्टी को ही वोट करते तो यहाँ पे वोट ही कम कर दो। अगर यहाँ पे 3000 वोट है, इसको काट करके कर दो आप 1000 वोट, तो ऑटोमेटिक
आपने जो कट किया 3000 में से तो 2000 कट कर दिया, 2000 तो कट हो गए समाज पार्टी को। ये कहना कि नहीं कैसे काट सकते हैं, अगर आपने किसी कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता भी समझ जाएंगे, जिसने बूथ लेवल पर काम किया होगा जमीन पे रह करके, उसको समझ में आएगा कि ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे कौन से बूथ पे किस पार्टी को कितने वोट पड़े और कितने सालों से कितने वोट पड़ते चले आ रहे, कौन सा बूथ कौन सा पार्टी कभी नहीं हारा है या कभी नहीं जो है वहां पे हमेशा जो है जीतता रहा है या हमेशा हारता रहा है, ये जानकारी होती है। और वो बड़ा ये कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो आप कर दीजिए, वो आदमी को फंसा दीजिए, एप्लीकेशन देता रहे, एक एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन, फिर चुनाव आ जाए, फिर आप ठप कर दो। आपका भी एजेंट्स है ना पूजा मिश्रा जी, वो कहेंगे यू आर इन द प्रक्रिया, टोरेंटो तो वो टोरेंटो, यू आर इन द टोरेंटो। आपके भी समाजवादी पार्टी इज वेरी स्ट्रांग इन उत्तर प्रदेश, आपके भी 100% श्योर है कि एवरी बूथ में आपका 10-10 एजेंट होगा, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रांग पार्टी इन समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश। आपके स्ट्रांग बूथ लेवल पे इतने लोग हैं, फिर भी क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर आप ऐसे समझ लीजिए, if a national spokesperson of समाजवादी पार्टी knows the booth numbers and the vote numbers, तो आप इमेजिन करिए कि जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके काम करने की शैली क्या होगी। अभी एमएलसी के इलेक्शंस रहे हैं एंड इवन जिसको आपको लगता होगा कि दिस इज द ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के लीडरशिप है, दे आर असाइन जॉब, they are answerable to their booth, they are answerable how many votes they have added, किसकी कितनी भरी गई हुई है, ये answerable है। अभी आपने पूछा था ना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, हमने कई बार डिबेट में कहा था 2024 में कि अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रत्याशी, जैसे स्कूल में होता है ना, हमें पता होता है बच्चा ये 60% लेकर के आएगा, टीचर को पता चलता है, तो वो उस पर टारगेट करता है कि नहीं इसको 60 नहीं मैं 70 लेकर के आने दूंगा, इसको जो 50 ला रहा है उसको 60 पे कैसे पहुंचाएंगे। तो जब हमें पता होता है कि हम इस सीट से जो है हमारी मार्जिन निकल करके आ रही है कि 5000 वोटों से या 10,000 वोटों के हम लीड ले रहे हैं, तो हम उस पर और मेहनत करते हैं कि हमें ये 25 चाहिए, हमें ये 30 चाहिए, ताकि अगर आप वहां पे धांधली करने जाए तो आपको धांधली करते हुए भी थक जाए, आपकी कितनी वोटों की धांधली करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2024 में नहीं धांधली हुई, 2024 में भी हमारी 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जो जबरदस्ती हराई गई हुई हैं। और बिहार में भी अभी आपको पता होगा दीपू सिंह की सीट पे जो 27 वोटों से चुनाव हारे हुए हैं, उसकी रिकाउंटिंग चली रही है, उस पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बताइए 27 वोट से जो है हराया गया हुआ है ये दीपू सिंह को। हम लोग बैठ करके फॉलो अप कर रहे हैं दिन भर से। अगर जो है चुनाव को देखा जाए, अगर आप पूछते हैं कि प्रश्न का ये कैसे अब तैयारी कर रहा है, वैसे कैसे समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडरशिप, हर एक नेता इस चीज पे लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में क्या कैसे चल रहा है और कहाँ चल रहा है। एन अपडेट फ्रॉम यू मैम। 17,800 के करीब आप लोगों ने अर्जियां भेजी थी एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को ओवर द लास्ट 8 और 9 इयर्स। उसमें से शायद आपको 4 या 5 जवाब आए थे, और जवाब आए हैं आपको इलेक्शन कमीशन से। 17,800 एफिडेविट भेजे गए ऑफ some discrepancies in various booths etc. in elections over the last 8 or 9 years. अखिलेश यादव जी ने संसद के बाहर खड़े होकर यह कहा था कि अब तक मुझे सिर्फ 5 का जवाब मिला है, और वो भी डीएम के द्वारा जवाब दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिया जी। तो अभी उसकी कोई अपडेट है मैम? Nothing. No, not a single news from that side. Right. So let me ask Sameer Bagre Sahab. Sameer Bagre Sahab is very, very ill. I don't want to keep him for too long. Sameer Bagre Sahab, don't you think the election commission should be more forthcoming? 17,800 complaints and they're asking the local DM to reply. Sameer Bagre Sahab, could you throw some light on that? देखिए राजीव जी, पहले तो मैं जो हमारी प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि किसी बूथ पे जाके आप वोट पे जाके वो अगर समाजवादी पार्टी को वोट पड़ रहा है उसको जाके आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब ये क्या इलेक्शन कमीशन को कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न समझ रहे हैं क्या? एक प्रक्रिया होती है, बीएलओ ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं, उनको लिस्ट दी जाती है ड्राफ्ट, उसके बाद ऑब्जेक्शंस का समय है, कोई भी नाम काटना है तो उसके फॉर्म्स है। पूजा जी जानती होंगी कि क्या आपका फॉर्म्स है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सो देखिए, एक प्रक्रिया को जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है जो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अगर कोई मरा हुआ इंसान उसमें अभी भी अपीयर हो रहा है या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गया उसका एसआईआर एक जवाब है। तो एसआईआर में तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं,
तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी संवैधानिक संस्थाओं पे आप इतने गंभीर आरोप करने से पहले आपके तथ्य पहले आप वेरीफाई कीजिए और उसके बाद बात कीजिए। दूसरी बात है, अगर अखिलेश यादव जी की पार्टी ने 17,000 समथिंग अगर कंप्लेंट्स की है, तो मुझे बताइए राजीव जी, प्रदीप जी, अगर अखिलेश यादव जी को जो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में, वो नेशनल हेडलाइन लेने में वो माहिर है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद पे कंप्लेंट्स उनकी अनआंसर्ड रहती तो उन्होंने नेशनल कैपिटल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज बताई रहती, वो कोर्ट में गए रहते, क्यों उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? तो देखिए, ये सेंसेशन क्रिएट करना, कुछ भी एफिडेविट्स करके देना और उसका जवाब मिलने के बाद भी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, बट इफ दीज आर द फैक्ट्स एंड देन स्टिल समाजवादी पार्टी स्लीपिंग ऑन दोज फैक्ट्स, सो आई एम वेरी सरप्राइज दैट अगर समाजवादी पार्टी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है, तो ये आज ना कोई प्रेस में आके बात कर रहे हैं, ना कोई कोर्ट में जा रहे हैं, तो इट्स अ सीरियस मैटर अगर इतनी तादाद में कंप्लेंट है, अनआंसर्ड है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इलेक्शन कमीशन इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन which will actually have done the inquiry and reply दिया। तो देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर हम हारते, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत खुद के भरोसे नहीं लाई थी, तो हमने हमारा इंट्रोस्पेक्शन किया, जहां फेक नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फैलाया था और जहां महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में फैला था कि ये संविधान बदलने वाले, उसके कारण हमको जो सीटों का नुकसान हुआ, हम हमारे ड्राइंग बोर्ड पे वापस गए। वी मेड अवेयर आवर वर्कर्स की क्या फेक नैरेटिव चल रहा है, आपको जनता के बीच में जाना है। इसको देखिए, हारना जीतना चुनाव, लेकिन अगर आप हार की कारणों को ही नहीं समझना चाहते, आप जिंदगी में, राजीव जी, प्रदीप जी, पूजा जी भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, हम लोग कोई गलती करते हैं तो पहले तो गलती मानते हैं ना, उसके बाद तो गलती करेक्ट करेंगे। अगर आप मानना ही नहीं चाहते कि हमारी कोई गलती हो रही है, और ये राहुल गांधी कभी तालाब में मारते हैं, कभी स्विमिंग करके दिखाते हैं, कभी बाइक चलाते हैं, तो ये कोई नौटंकीबाजों के लिए थोड़ी जनता वेट कर रही है, उनके फ्यूचर का सवाल है, गवर्नेंस पॉलिसी। So let me ask Pooja. No, I want to ask Bakre Saab, because the economy is slightly of the economic side. He's a chartered accountant. अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप सरकार पर लगाया, योगी गवर्नमेंट पर लगाया। उन्होंने कहा द डीमोनेटाइजेशन, अखिलेश यादव जी का कहना कि डीमोनेटाइजेशन के पैसे से गोल्ड आप होर्डिंग कर रहे, इसलिए गोल्ड का प्राइसेस राइज हो गया। बाकरे साहब, the gold prices are rising because of the illegal demonetization money that you have accumulated, and most of you BJP or allied people are investing in gold, and it has become unaffordable for a common man. जितने यूपी में शादी हो रहा है, गरीब लोग सोना खरीद नहीं पा रहे, बिकॉज आपने इतना बड़ा चढ़ा के प्राइस राइज करके रहा गोल्ड का। हाउ एक्यूरेट इज दिस एलिगेशंस? सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल रिस्पेक्टेड अखिलेश यादव जी, कि अगर डिमोनेटाइजेशन के पैसा जो था वो तो आपको बैंक में भरना था, तो आप कहाँ से इलीगल होल्डिंग कर रहे हैं? तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया आप वो मनी को होल्ड कर सकते। तो अगर ये चीज यानी कुछ तो भी सेंसेशन क्रिएट करना, आपको भी पता है गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, इंटरनेशनल जो एक अनसर्टनिटी है, पीपल रश टू बाय द गोल्ड, रिजर्व सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप, सो उससे गोल्ड बढ़ा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है भाई साहब? अगर गोल्ड का प्राइसिंग वो इंटरनेशनली बढ़ा है, नेशनली बढ़ा है, और वो डिमोनेटाइजेशन यानी जो चीज को 8-9 साल हो गए उसका पैसा हमने वहां रखा, उससे गोल्ड लिया और आज गोल्ड की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा I would not like to use strong words, childish argument मैंने नहीं सुना सर। Sameer Bakre साहब, two things here before I go to Pooja Mishra ji. The fact is, this is the first time that all stock markets are going up, land prices are going up and gold prices are going up. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है. It has never happened before, which means something or some forces are driving all these three things up. And as Warren Buffett says, there's every possibility that there's going to be a crash in the next 6 months. However, some good news. The Moody's and Standard & Poor have both upgraded India's GDP, expected GDP figures for the year 2025-2026. It now stands at 7.8%. So congratulations, 7.8%, which is absolutely fantastic. Which means in the next three or 4 years, there's every possibility we might even touch 9%. That will be wonderful. That will be absolutely wonderful. So congratulations to everybody, to all Indians. Dr. Pooja Mishra, जो समीर बाकरे साहब ने कहा 17,800 के करीब कंप्लेंट्स हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं आ रहा और आप कोर्ट में नहीं हैं। आप कोर्ट में क्यों नहीं है मैम?
देखिए राजीव जी, हमने जो है भेज दिया हुआ इलेक्शन कमीशन के पास में और हम कंप्लेंट करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि हम जो भी टोरेंडो कहा उस टोरेंडो में फंस जाए, पर हम टोरेंडो में नहीं फंसेंगे। हमने लगातार इससे पहले 2022 में भी कंप्लेंट की थी और अगर हम टोरेंडो में फंस गए होते 2024 में हम अपनी सीटें नहीं लेकर के आते। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें जहां कंप्लेन करनी हम करते चले जाएंगे। अब ये चैलेंज करते थे इन्होंने, तो ये भी चैलेंज किया था आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाया जाए, और भाजपा वाले इसको बहुत यूटिलाइजेशन करते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम को हैक करके दिखाया जाए तो कोई आगे नहीं आया। ये नहीं बताते कि इलेक्शन कमीशन ने कंडीशन रखा कि जो है ना तो ईवीएम को टच किया जाएगा ना ईवीएम को ऑन किया जाएगा, उसको दूर रखा जाएगा आपसे और आपको यहाँ से खड़े होकर के इंडक्टिव इफेक्ट से, जो है केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो इंडक्टिव इफेक्ट से आपको उसको हैक करके दिखाना पड़ेगा। आप बिल्कुल टच करने नहीं देते, ईवीएम ऐसे कैरी होता है। तो मैं तो ये कहूंगी, चोर कह रहा हो कि भाई हमारे घर की तलाशी ले लीजिए पर हमारी तिजोरी मत खोलिए और बताइए कि मैं साबित करे चोर है। तो इस तरीके से तो चीजें आप फंसाने का कार्य करेंगे तो उसमें हम नहीं फंसने वाले हैं। हमने आपको जो इलेक्शन कमीशन को देने थे वो भी दिए, हमें इन्होंने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरी दिल्ली की मीडिया ने उसको कवर किया, उन जो एफिडेविट थे उसको भी कवर किया, उनकी पिक्चर्स भी ली और इलेक्शन कमीशन को भी पास भी इंफॉर्मेशन है, मेल्स के भी इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जाकर के टोरंटो में फंस जाए तो हम नहीं फंसने वाले। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता सबसे प्राथमिकता में है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता, हम उसके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अभी फिलहाल आज की तारीख में अगर पूछते हैं तो आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के मताधिकार की रक्षा करें, हम उनके सामने कैसे खड़े जो एसआईआर की जटिल प्रक्रिया चालू हो गई हुई है उसमें हम जनता के लिए कितने अवेलेबल रहें ताकि उनको परेशानी ना हो, उनको जो है दिक्कतें ना आए, उनको चीजें सिंपल में समझ में आए और हम उनके हेल्प के लिए अवेलेबल रहें। ये हमारी प्राथमिकता आज की तारीख में है। डॉक्टर पूजा, एक्चुअली व्हाट अखिलेश यादव जी ने जो हाईलाइट कर दिया कि शादी में गरीब जनता जो है गोल्ड खरीद नहीं पा रहे, दैट इज अ नॉर्मल बिकॉज इट्स बिकम अनअफोर्डेबल, गोल्ड हैज बिकम अनअफोर्डेबल। वहां तक अखिलेश यादव जी सही था कि सरकार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाटएवर आप मार्केट फोर्सेस को ब्लेम करेंगे बट अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन इट। ही सेड फर्दर जाके कहा कि डीमोनेटाइजेशन के पैसे से वजह से या गोल्ड प्राइस इज राइजिंग। नाउ हाउ डू यू वांट टू जस्टिफाई दैट? किस प्रकार से देखते हो? देखिए मैं इकोनॉमिक्स तो हूँ नहीं, वरना मैं इकोनॉमिक्स के साथ में ना ही मुझे पता था कि टॉपिक आएगा कि मैं उस पर स्टडी कर पाती। हाँ, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन है वो इतना इन्फॉर्मेशन तो है ही कि डिमोनेटाइजेशन से पहले प्रति 10 ग्राम सोने का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 28,000 टू 28,500 था, और अगर आज की तारीख में वो जो है आपको 1 लाख को पार कर गया हुआ है तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और आप कह रहे डिमोनेटाइजेशन की मनी से, तो इन्होंने कैसे हो जाएगा? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कि कैसे नाम काट लेंगे, उसकी प्रक्रिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि वही तो बात है कि आपने काट डाले 10,000 नाम, अब उसकी प्रक्रिया में आप फंसे रहिए। तब तक जब तक आप फंसे रहेंगे काम चलता रहेगा, फिर आ जाएगा चुनाव, फिर आप कहेंगे नहीं लॉक, आपकी प्रक्रिया पेंडिंग चली गई। ये तो सबको पता है सच्चाई। और अभी आप कह रहे कि आप जो है इसको कह दे रहे डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन ने भारत देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज्यादा। अगर डिमोनेटाइजेशन जो है, डिमोनेटाइजेशन बिना प्लानिंग के हुई, जो है कोविड के समय में भी देशबंदी भी बिना प्लानिंग के हुई। अगर हम लोग पढ़ा करते कि जो इंडिया में जो इकोनॉमी स्टेबल रहती थी, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है क्राइसिस फेस कर रहा था, तब भारत देश में नहीं हुआ था। उस वक्त जो है श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ पे लिक्विड फ्लो है, कैश फ्लो है, इसकी वजह से। और डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया? इट स्टॉप द लिक्विड फ्लो। तो उसकी वजह से जो रिजल्ट निकल करके आया, जो हम कंसिक्वेंसेस अभी फेस कर रहे हैं, वही जो हमारा पावर था, जो हम क्राइसिस के समय में स्टेबल होने का हमारा कारण था, उस कारण को हमने फोकस किए बिना ही डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बिना किसी प्लानिंग के। ऐसा समझिए कि एक नदी बह रही थी धारा प्रवाह के साथ में, और हमने अचानक से उसका बिल्कुल डाइवर्जन सोचे बिना बांध बना दिया। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही है कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो गोल्ड के प्राइस हो, चाहे अदर प्राइस हो। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कई सारे ऐसे पुराने भाषण हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब जब रुपया गिरता है तब तब जो है प्रधानमंत्री जी का
गिरता है, कद गिरता है, जो भी उन्होंने बोला हुआ था, अगर अब देखा जाए तो इसके तहत तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया होगा। और जो है भी प्रवक्ता कह रहे थे कि नोटंकी देखने के लिए नहीं है जनता, उनको सीरियसनेस चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कौन नोटंकी किया हुआ है? बहुत सारे नोटंकी किए हुए हैं, रिपीट करने का मन नहीं करता। जिस स्टेज से कह रहे हो वो दीदी कर रहे हो, उसके बाद में ममता बनर्जी जी की नकल करनी हो, उनकी मिमिक्री करनी हो, कहाँ क्या छोड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने? कभी जो है वो मयूर के साथ में रील बना रहे हो, कभी जो है कहीं पे बैठ करके योगा करने का रील बना रहे हो, न जाने कितने रील बनाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो उनसे ज्यादा किसी ने नोटंकी नहीं की हुई है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जो है अगर बात करने के लिए आप आते हो, आपको ध्यान देना चाहिए। यू शुड रीड योर ओन बुक बिफोर आस्किंग। मोहन भागवत जी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा कि योगी जी के नाम चेंज को सपोर्ट करते हैं, जो नामकरण करते हैं। बोले कि आक्रांत का नाम नहीं होना चाहिए, आक्रांत जो इन्वेजन किए हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए। हम अब्दुल हमीद के नाम नहीं चेंज करेंगे, अब्दुल कलाम के नाम नहीं चेंज करेंगे, हम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम नहीं चेंज करेंगे, अफशाकुल्ला खान के नाम नहीं चेंज करेंगे। आक्रांत का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ मोहन भागवत जी? ये तो मुझे लगता है कि आरएसएस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। नाथूराम गोडसे अगर महात्मा गांधी जी को गोली मारते हैं, देश के पिता को गोली मारते हैं, तो फिर तो आरएसएस नहीं होनी चाहिए अगर उनकी बात को देखा जाए तो। अगर कोई जो है जो दांडी मार्च निकालता हो, जो शॉर्ट लो ब्रेक करता हो, जो नॉन ओबीडियंट मूवमेंट चलाता हो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाता हो, उसके ऊपर जो जिस संस्था का व्यक्ति गोली चलाता हो, उस संस्था को बंद हो जाना चाहिए। ये मोहन भागवत जी की तो यही हो जाएगा। अभी जो देश की आजादी के लिए लड़ रहा था व्यक्ति, आपने उसकी हत्या कर दी। Yes, और आप बाकी साहब बोलिए बाकी साहब मोहन भागवत और आपके संगठन के लोग कहते हैं कि ये हीरो है हमारा, और उसको नहीं बैन कर पा रहे हैं आप। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कैसे देख रहे हो बाकरे साहब? इवन ऐसे अब्दुल हमीद रखो, अब्दुल कलाम रखो, राम प्रसाद बिस्मिल रखो, हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ भागवत साहब? देखिए, मैं तो हैरान हूँ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी के अज्ञान से कि जो नाथूराम गोडसे को संघ से जोड़ने की कोशिश कर रही है। संघ के ऊपर नाथूराम गोडसे ने बहुत बार क्रिटिसिज्म किया है। आजादी के बाद 2 कमीशन हुए जिसमें ये चेक किया गया, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक को क्लीन चिट मिली, तब कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। तो ये जो आप गलत आरोप कर रही है पूजा जी, मैं इसका मतलब खंडन करता हूँ। और आप अपना हिस्ट्री के रिलेशंस ठीक तरीके से लीजिए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आप जो गलत इल्जाम लगा रही है, उनके बारे में पहले समझिए और फिर बात कीजिए। और दूसरा, जहां तक प्रदीप जी आपका सवाल है कि अगर आक्रांतों के या इन्वेजन जिनके हुए उनके नाम हटाने चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? क्या हम औरंगजेब रोड और ये सब नाम रखना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए, इतने जुल्म किए? और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। ऐसे शुरुआत करते हैं ना, सुनिए पूजा जी, लाल किला डॉक्टर जो है आगरा का ताज, अरे जो आयरन पिलर, ऐसे नहीं होता है नाम ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पूरी की पूरी जो उनकी निशानियां है एक तरफ से खत्म किया जाए, एक तरफ से। इनवेडर्स की जितनी निशानियां हैं, अभी भाजपा की सरकार है, मैक्सिमम जगहों पे सरकार है, वो एक बिल लेकर के उनकी मेजोरिटी है, पास कर दे कि इनवेडर्स की जितनी निशानियां खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे संगम पे किला है, किला है, उसको खत्म कर दे। संगम के दूसरी तरफ में जो है उल्टा किला है, उसको तोड़ के खत्म कर दिया जाए। हाई कोर्ट है, उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता है, नाम नहीं रहेगा। जब बात करते हैं आप, नाम नहीं रहेगा लेकिन चीजें रखे रहेंगे। और इन्वेडर को डिफाइन कौन करेगा? इन्वेडर को डिफाइन कौन करेगा? इन्वेडर को डिफाइन कौन करता है? आपको उसके बाद बोलिए ना जी, बड़ा इलॉजिकल लगता है मुझे। भगवान श्री राम जी ने यशोमेघ यज्ञ किया था। भाई क्यों किया था यशोमेघ यज्ञ? कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां मैं इन्वेड करके राज्य ले लूंगा। और यही तो था ना, या तो आप करके नीचे रख दीजिए, समर्पण करिए, या हम युद्ध करेंगे आपसे और फिर हम कब्जा लेंगे। इन्वेडर समीर बाकरे साहब की बात चल रही थी, टेरिटरी आप कह रहे कि नहीं वो इन्वेडर्स थे।
How you gonna divide? Sameer Bhakre did not interrupt you, ma'am. He did not interrupt you. Will you all give him the courtesy? I just find all this stuff illogical. So you can say that in the present era, talking about bank, ma'am, you can say that after he finishes. Illogical. So you can say that after he finishes, ना ma'am. You're welcome. I mean, there is no problem at all. देखिए राजू जी, कोई प्रॉब्लम मैं तो हैरान हूँ कि पूजा मिश्रा जी जैसी व्यक्ति अगर हमारे इन्वेडर्स को हीरो बनाना चाहती है, समाजवादी पार्टी हमारे इन्वेडर्स को हीरो बनाना चाहती है, तो उनको जनता बताएगी कि क्या चुनाव में उनको कैसी हार मिलेगी, देखेंगे। और अगर इन्वेडर्स है, क्या हमारा देश के मंदिर तोड़ना, हमारे देश की संस्कृति को खराब करना, अगर ऐसे इन्वेडर्स के हम आदर्श बनाने का अगली पीढ़ी के सामने थोड़ी रखेंगे। अगर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए तो इट इज आवर ड्यूटी टू करेक्ट दोज। और अगर कोई सिविलाइजेशन पे गर्व नहीं है भारत के, तो मैं तो मानता हूँ इतना ज्यादा बढ़िया सिविलाइजेशन हमारे देश में था जो ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने नष्ट किया। आज जो बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार में कितने बड़े बड़े नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे, चाणक्य जैसे व्यक्ति होके गए हैं, जिसने देश का गौरव बढ़ाया और विश्व में बढ़ाया। तो अगर हम देश के गौरव के हिसाब से अगर हमारे यहाँ के इन्वेडर्स और जो गलत लोगों के नामकरण हुआ है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस फॉर, तो सर आपसे एक सवाल पूछ लूं सर, या अगर आपकी इजाजत हो समीर भाकरे साहब। सर आप हमेशा मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। If you will permit me, sir. सर आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, दैट्स अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास जो स्टेशन है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको एक रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन का अभी भी नाम बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन है। ये वही बख्तियार खिलजी है जो कहा जाता है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, जिसको नष्ट भ्रष्ट किया। आपकी सरकार तो सर 12वां साल हो गया आपका। Railways comes under you. You have still not been able to change the name of the Bakhtiar Khilji railway station. Bakhtiar Khilji is the man who destroyed Nalanda, and as his biographer states very very clearly, he was so proud of it. 6 महीने तक वहां पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो जलते रहे, और वो मैन्युस्क्रिप्ट कौन से थे? थोड़े बहुत बच गए, because quite a few people had taken them to China. We were able to get them back from there. अब आप बोलें सर, समीर भाकरे साहब प्लीज। देखिए राजू जी, आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द केस, बट डेफिनेटली अगर ऐसा है तो उनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी की ग्लोरियस हिस्ट्री को अगर किसी ने डिस्ट्रॉय किया है और वही व्यक्ति का नाम है, तो डेफिनेटली आई विल आल्सो टेक अप दिस मैटर ऑन माय पर्सनल कैपेसिटी एज वेल एज थ्रू पार्टी फोरम्स। आई कैन एश्योर यू दैट कि डेफिनेटली वी विल टेक दिस। और मैं तो एक कहता हूँ कि सर आज नालंदा यूनिवर्सिटी में उस जमाने में जब ये हमको अंग्रेज समाज ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की बात बता रहे हैं हमको वेस्टर्न कंट्रीज, उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी में 20,000 लोगों की रहने खाने की व्यवस्था थी। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड था। तो हमारी अगर ग्लोरियस पास्ट को हम सामने लाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ होती है? क्यों ये चाहते हैं कि हम लोग भाई हिस्ट्री में ना जाए? अरे अगर सिविलाइजेशन और देश अपने हिस्ट्री पे ऊपर गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, सो उसको मटेरियलिज्म में आपको जकड़ के रखना है क्या? हमारे देश के युवक को तो बताना पड़ेगा ना कि हमारा देश 2000 साल 1500 साल पहले दुनिया के 33% जीडीपी को रूल करता था। एक देश को हमने गरीब बताना, देश को इलिटरेट बताना और ये बोलना कि नहीं मुगलों ने ये ताजमहल बना के गए। अरे आप ताजमहल के नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप मंदिर है, अभी परेश रावल जी की आप मूवी देख लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मुगलों का जो ग्लोरिफिकेशन होता है, सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सर लेट्स नॉट गेट इनटू परेश रावल मूवी। सर परेश रावल की जो मूवी है उसको अलग ही रखें तो अच्छा है। आई एग्री टोटली विद मोहन भागवत जी जब वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे कृपा करके शिवलिंग ना ढूंढें, सिर्फ 3 की बात हुई थी, उन्हीं 3 पर फोकस करें, यानी मथुरा, काशी, अयोध्या, बस दैट्स इट। उसके अलावा किसी और चीज को मत देखें। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी की इसमें क्या तकलीफ है? व्हाई अब्दुल हमीद रखा तो अब्दुल कलाम रखा? वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, है ना? हम लोग नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसको कहेंगे जो है एक लूप कहेंगे, लूप में फंसा देना कहा जाएगा। हम कितने नाम को बदलेंगे? मैं जहाँ पे हूँ कर्नलगंज है, इसके बगल में टैगोर टाउन है, उसके बगल में जॉर्ज टाउन है। आप कितने नाम को बदलते जाएंगे? और अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो हो सकता है कि टैगोर जो रहे होंगे हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर गोली चलाई होगी। अगर हो सकता है कि जो जॉर्ज के नाम पे जॉर्ज टाउन बना हुआ है तो हो सकता है वो किसी स्वतंत्रता सेनानी को जो है लाठी से उनको भांजा होगा। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे फिर तो हम डिस्ट्रक्टिव रहेंगे ना।
और फिर हम इस पे ये नहीं जा सकते, जब हम इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग को सिविलाइजेशन प्राय तब एनसीईआरटी में नहीं रह गया। जब हम लोग क्लास 6 में थे तो एनसीईआरटी में सारे सिविलाइजेशन थे, चाहे चोला सिविलाइजेशन, एक बड़ी सी बुक थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन से पढ़ाए गए हुए थे, और वहां पे सबके नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव पैरेलली शो किए गए थे कि कौन सा राजा क्या कर रहा था, किस सिविलाइजेशन में क्या हायरार्की चली, यादव की कौन सी हायरार्की चली, चोला की क्या हायरार्की चली, और कहां से कब मुगल एम्पायर आया। तो ये तो फंसाने की बात हो जाती है कि आप लेकर के चले जाए, अगर आप हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरीके से पढ़ते जाए और आगे बढ़ते चले जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। आप नाम बदलने में चले, बेहतर होगा कि जो नाम बदलने में आप खर्चा करेंगे। आपको पता है कि जब एक अभी से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तो डॉक्यूमेंटेशन में कितने बदलाव किए गए होंगे। अब सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव होना, उसके बाद में फिर आपको जब डिस्ट्रिक्ट भी बदलता है ना तो आपकी जो वोटिंग आईडी कार्ड्स होती है ना, आपको न्यू वोटिंग आईडी कार्ड्स आती है, वो खर्चे तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया हुआ तो दूसरा वो जब आएगा ही, तो वो सारे खर्चे होते हैं, उसमें आप जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हो रादर वो प्रोडक्टिव चीजों पे कर लेना। नाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज के समय में, कोई ध्यान भी नहीं देता। अगर भाजपा ले जाकर के ध्यान न दिलाए कि ये नाम इसलिए रखा गया है या वो नाम उसने रखा गया हुआ है, सबके लिए जस्ट वो नाउन है। अगर वो इलाहाबाद हो तो इलाहाबाद किसके लिए रखा गया नहीं पता। अकबर इलाहाबादी को क्या आप क्या कहने लगेंगे, अकबर प्रयागराज कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। जो राहत इंदौरी है और राहत इंदौरी ही रहेंगे ना। तो अगर आप नाम को बदलने के, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक टाइम वेस्ट की चीज है। जबरदस्ती जो रियल मुद्दे हैं, रियल इशूज है, उसे हटाने का है, ये कोई इशू नहीं है। रादर जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो इशू है। The other view is that there is a certain thing called cultural pride. There is a certain thing called collective subconscious, and that pride has to be restored. For 1,000 years odd, the fact remains that there were people, most of the majority in India, had to answer to what is now a minority. Let's be very clear. It is also absolutely true that the Krishna Janmashthan temple was demolished and an Eidgah was built on it. And there are proofs to that effect. In fact, there is a farman issued by the Emperor Aurangzeb himself कि इसको तोड़िए, और उसकी जगह पे वो बनाया गया। सो मेरा ये कहना है कि डोंट यू थिंक दैट कल्चरल प्राइड नीड्स टू बी रिस्टोर्ड? दैट इज आई डोंट थिंक यू कैन पुट अ प्राइस ऑन इट। मुझे लगता है कि पहले स्कूल पे फोकस कर लिया जाए, देख लिया जाए कि हमारा जेन अल्फा जेन जी हमारे कल्चर को कितना लेकर के जा रहा है। मैं जब अपने ऑफिस से बाहर निकलती हूँ, मैं जितनी बार जो है चाय की टपड़ी देखती हूँ, मेरे उतनी बार मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैंने जो चीजें दिल्ली में देखी हुई थी, मुझे वो इलाहाबाद में देखने को मिलता है। वो आप क्या रहे कि आप इससे स्टोर कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार आना चाहिए तब तो स्टोर होगा। जनरेशन को पता ही नहीं है, जनरेशन को लग रहा है कहीं लड़ रहे हैं, कहीं पे नाम बदला जा रहा है, ठीक है बदलने तो कोई बात नहीं है, हम अपने छल्ले बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हमारा यही प्रोग्रेस है। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती क्या मैम? उस पे कहाँ बात कर रहे हैं? तो मैम दोनों चीजें इकट्ठी चले ना, जो आप कह रही हैं वो भी और जो इधर चल रहा है वो चल रही है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। अगर मुझे जो है अभी की जनरेशन देख करके डिस्टर्बेंस होता है, सरदर्द होता है, तो आपको कितना होता होगा? तो आप भी तो उसी जनरेशन की हैं। फिर भी जो है आपको हमें देख करके डिस्टर्बेंस हो सकता है, होता रहा हो। अब बस सोचिए जिस जनरेशन को देख रहे हैं कि जिस जनरेशन को देख के आप डिस्टर्ब होते थे, उसके आगे के जनरेशन को देख के हम डिस्टर्ब हो रहे, तो आपको कितना होता होगा? और ये सच्चाई है। आप I think this is now we are going in a different area. Indulge है, जहाँ पे नहीं indulge होना चाहिए। But in any event, Sabir Bhagre साहब, congratulations to the BJP and to the JDU for a brilliant victory in Bihar. And now your focus, I believe, is on West Bengal. Next target is West Bengal, ये कहा जा रहा है। और जहाँ तक कि जैसे पूजा मिश्रा जी ने कहा कि वो यहाँ शो के ऊपर बैठ के थोड़ी बताएंगी कि भैया उनकी रणनीति क्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने की। तो देखेंगे साहब, जब यूपी का चुनाव आएगा देखा जाएगा कि अखिलेश यादव जी किस प्रकार अपनी फोर्सेस को मार्शल करते हैं और किस प्रकार आप लोगों से लड़ते हैं। That will be fun to watch. I tell you, I'm very impressed with Akhilesh Yadav, and I'm sure Akhilesh Yadav will come out with a great strategy. And the opposition, especially Akhilesh Yadav जी का कहना है कि BJP should restrain the misuse of SIR to eliminate their voters. अब बाकरे साहब उसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। I don't think Bhagre Sahab, I think Bhagre Sahab has said enough on SIR. Right. Thank you very much, both of you. Great pleasure as always talking to the both of you. Namaskar. Whenever you are in Mumbai, please come and see us. Thank you. Namaskar. Namaskar.
Well, it was a great victory for the BJP. Oh my God, it was absolutely fantastic. I think they've now come down to 89. I think they're leading in 89 seats. And the JDU is at 84, so... As you said, it's a clean sweep. 173 seats just for these two. और उसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान को भी लग रहा होगा कि यार मेरे पास 19 सीटें कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, मतलब 19 सीट्स, वाव, अमेजिंग. आज तक अभी रामविलास पासवान जी के पास इतनी नहीं आई जितनी चिराग पासवान के पास आ गई. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक. एंड आज जो मोदी जी गए थे भारतीय जनता पार्टी के स्वैंकी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में, आज दिल्ली में, ही वाज देयर. एंड ITO के पास है, ITO के पास जगह है, बहुत खूबसूरत भारतीय जनता पार्टी का नया ऑफिस बना है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत साहब. बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद JP Morgan का या रिलायंस का या किसी का ऑफिस है. I don't understand what happens if they make magnificent good offices. I mean, he's enlarging his organization like never before. Today, BJP is a force. Yeah, but people are questioning where's the money coming from. 15, 20, have they given accounts? 20 years back, what was BJP? Nothing. I mean, सर कांग्रेस का वही 24 अकबर रोड का वही घिसा पिटा पुराना ऑफिस है सर. आज तक कभी चेंज नहीं कर पाया. You earn money, you make wealth, create wealth, they do it. Right, earn money. That is the most important point. Pradeep ji has hit the nail on the head. BJP knows how to make money. Right, I'm already impressed. But the fact remains, as far as the GDP growth is concerned, already Moody's and S&P have both upgraded India to almost 6.8%, which is fantastic, which is absolutely lovely. 7.8%, I'm so sorry, 7.8%, which is absolutely remarkable. Matlab ke, that means the industrial indices, the consumer index and everything else has really gone up. So Trump साहब के जो टैरिफ थे, उनने कोई खास फर्क नहीं पड़ा है उससे हिंदुस्तान की ग्रोथ पर. और अब तो खैर ट्रम्प साहब ने खुद कह दिया कि मैं तो 50% डिक्रीज कर रहा हूँ, 50% कम कर रहा हूँ. Who's blinking? Modi is standing upright. I mean, whatever you call it. I mean, we don't take sides where parties are concerned, but I take sides. Look at the way he stands upright. I'm with the BJP. He is standing upright, looking eye to eye, looking eyeball to eyeball, but keeping shut, and I'm doing the talking. I mean, my work is doing the talking. You can't do anything. That's it. So finally, I think it's coming down. And in any event, we had to, as far as the Russian oil imports are concerned, we had to cut them down anyway, because Russian oil price, Abhi Pradeep ji, is exactly the same as Saudi oil. Yes. So, what's the point of taking oil from Russia at the moment? अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सऊदी ऑयल से ज़्यादा है. तो by the time it lands over here, landed cost will be more. So far better to take it from Saudi Arabia. So मेरा ये कहना है कि that all that has been worked out. And as Mr. Hardeep Singh Puri has said, if next year Russian oil is cheaper, we'll take it again. We'll buy it again. Let's be very clear as far as we are concerned. We are only concerned with our people. Our interest, our people's interest. That's the most uppermost thing in our mind. I mean, देखिए साहब, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने बेधड़क होके सीधे साधे तौर पर अमेरिकनों को कहा है, I am here for India's interests, not for American interests. सीधी बात. Our interests are India's interests. भारत के भारतवासी जो हैं उनके लिए जो फायदेमंद चीज है हम वही करेंगे साहब. आप वो करो जो अमेरिकन के लिए फायदेमंद चीज है. We can't tell you to go against the United States of America. Similarly, you can't tell us to go against the interests of our people. That's it. And if the Americans don't understand that, God bless them. As far as I know, the Americans haven't won a single war since Vietnam. They lost in Vietnam, they were destroyed completely, they were destroyed in Afghanistan, destroyed in Syria, destroyed in Iraq. The oil companies, of course, made a lot of money. And the entire Middle East was destabilized by the actions of George W. Bush Sr. and George W. Bush Jr. And look what happened. Today, we are faced with ISIS, we are faced with Al-Qaeda and all their offshoots. And in Nigeria, there is an anti-Christian genocide happening in Nigeria right now and nobody is talking about it. Christians are being killed almost on a daily basis. And there are no crowds outside on the roads in Washington and Harvard and Yale and Stanford carrying flags and protesting the Christian massacres which are taking place in Nigeria. Why? Because there are no Jews involved. क्योंकि इजराइल उसमें इन्वॉल्व नहीं है,
इसलिए आप नहीं हैं। और यही चीज मैं यहां कहना चाहूंगा प्रदीप जी, रेड फोर्ट के ऊपर जब बम ब्लास्ट हुआ ना सर, वेयर इज द प्रोटेस्ट? फिलिस्तीन को लेकर के, गाजा को लेकर के तो आप बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग मर गए, ये मर गए। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे साहब? सिंपल क्वेश्चन है। पाकिस्तान से आतंकवाद जो भारत में आया है उसके ऊपर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? उसमें सांप क्यों लौट जाता है? क्यों आपकी जबान बंद हो जाती है? These are questions to be pondered. Of course, yes, true. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. All that needs to be done is we have to wait and see whether it is Nitish Kumar Saab who will come back as chief minister or not. I think he probably will. God knows. You were on the dot when you said it's going to be NDA. बाकी सब लोग सोच रहे थे काटे के टक्कर होगा और ये होगा. नहीं सर, I had said clean sweep होगी सर, landslide. क्योंकि as I've been saying, I mean, by the way, this is my line, so don't pinch it. Money in the bank is Yes. votes in the EVM. That's it. Money in the bank, votes in the EVM. याद रख लीजिए. That's what you said. Correct. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साहब, तो अभी कर लें. Please do subscribe to this channel. The fastest growing channel of the nation now. Subscribe. Nation Now. Click on the icon and you subscribe to the fastest growing channel of the nation now. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now. इस खबर के साथ एक बार फिर कि एनडीए की इतनी बड़ी जीत बिहार में आज तक कभी नहीं हुई है. पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी जीत हासिल की है मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने, और उसके चाणक्य असल में अमित शाह साहब हैं. सो डोंट फॉरगेट टू गिव क्रेडिट टू हिम. ही इज द मैन रिस्पॉन्सिबल. आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक आप देखते रहे नेशन नाउ. जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम आएंगे आपके पास कल. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.